Hello everyone, good morning all of you. How was everyone doing? I hope you all are doing well. So student, in previous video we discussed about lesson number 11, force and pressure. Yes, so student, we already discussed that force can change the shape of an object and also force can change the state of motion. Yes, so student, today's topic is that contact forces, second is non-contact forces, third is electrostatic force, and fourth is gravitational forces. Okay, so today we learn about this fourth topic in detail through कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्स में पढ़ेंगे मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन. So can you push or lift a book laying on a table without touching it? Can you lift a bucket of water without holding it? Generally, to apply a force of an on an object, your body has to be in contact with the object. Yes. So student, contact force में क्या है कि अगर एक टेबल पे बुक है अगर तो हम उसे बिना टच करे उसको हम मतलब लिफ्ट नहीं कर सकते. अगर बकेट है तो बकेट को हम बिना होल्ड करे उसको इधर से उधर नहीं कर सकते. सो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें फोर्स लगाना है तो हमारी जो बॉडी है उनके कॉन्टैक्ट में आती है. यस, द कॉन्टैक्ट में ऑल्सो बी with the help of stick or a piece of a rope. When we push an object like a school bag or lift bucket of water, where does the force come from? This force is caused by the action of muscles in our body. तो ये जो force है जो हम उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो ये कहाँ से आता है? मसल्स से आता है. यस, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज़ नोन एज मस्कुलर फोर्स. और जो एक्शन मसल्स के वजह से फोर्स आता है उसी हम क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स. It is the muscular force that enable us to perform all activities involving movement of or breathing of our body. In class 7th, you have learned that in the process of digestion, the food get pushed through the alimentary canal could be muscular force. That does it. You also know that the lungs expand and contract while we inhale and exhale air during the breathing. Where are these muscles located which making breathing possible? Can you list a few more examples of the force exerted by the muscles in our body? Animals also make use of muscular force to carry out their physical activities. Animals जो है हमारे अपने बहुत सारी physical activity करने के लिए muscular force का use करते हैं. And other task animal like bullock, horse, donkey and camels are used to perform various tasks for us. Yes, तो हम लोग बुलेक का, डंकी का, कैमल का यूज़ करते हैं क्योंकि हमें ये देखो जैसे कि ये देखे दिख रहा है. हाँ, तो ये मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है. एनिमल मस्कुलर फोर्स यूज़ कर रहा है क्योंकि उसको ये टास्क क्या करना है? कंप्लीट करना है. ओके. Since muscular force can be applied only when it is contact with an object, it also called कॉन्टैक्ट फोर्स. तो मस्कुलर फोर्स कब अप्लाई होते हैं? जब अगर वो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके. देयर आर अदर टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. लेट अस फाइंड आउट. तो फर्स्ट क्या है? फ्रिक्शन. सो रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस. A ball rolling along a ground gradually slows down and finally come to a rest. When we stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and finally comes to stop. A car or scooter also come to a rest once its engine is switched off. Similarly, a boat come to a rest if it stop rowing it. कैन यू ऐड सम मोर सच एक्सपीरियंस. सो स्टूडेंट, हमने देखे है कि अगर हम पेडलिंग बाइसिकल की पेडलिंग अगर बंद कर दे तो कुछ देर में रुक जाती है. बॉलिंग भी वैसे ही. ओके. सो इन ऑल दिस सिचुएशन नो फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. तो इन सब सिचुएशन में क्या होता है? कोई भी फोर्स नहीं लगता ऑब्जेक्ट के ऊपर. एट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेड एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम. तो इनकी जो स्पीड है क्या होता है? फोर्स नहीं अप्लाई होने की वजह से ग्रेजुअली क्या होती है? स्टॉप हो जाती है. व्हाट कॉजेज अ चेंज इन देयर स्टेज motion? Could some force be acting on them, and can you guess direction in which force must be acting on each case? The force responsible for the changing the state of motion of an object in all this example is the force of friction. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन. ऐसा फोर्स जो स्टेट ऑफ मोशन चेंज करता है ऑब्जेक्ट का, तो इसी को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन. इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ अ बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग द मूविंग बॉल रेस्ट. यस. सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग टू अ स्टॉप वंस यू स्टॉप रोविंग. तो ये सब एग्जाम्पल जो है वो किसके है?
फ्रिक्शन की. ओके, यू मे बी वंडरिंग वेदर इट इज़ इसेंशियल फॉर द एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू बी ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विथ इट. लेट अस फाइंड आउट. सो अभी हम पढ़ते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. अभी हमने कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़े, अभी हम देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो इसमें है मैग्नेटिक फोर्स. ओके, सो स्टूडेंट, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, ये मैग्नेट बार लेना है, उसके बाद में उनको पेंसिल के ऊपर रखना है और फिर आपको अट्रैक्शन और रिपल्सन जो है दोनों के बीच का, वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है. Does the magnet on the rollers begin to move when the other magnet is brought near it? Does it always move in the direction of the approaching magnet? तो क्या उस मैग्नेट की वजह से क्या वो अट्रैक्ट होगा पेंसिल के ऊपर रखा हुआ वाला मैग्नेट? What do this observation suggest? Does it mean that the force must be acting between the two magnets? You have learned in class 6 that like pole of two magnets repel each other and unlike poles attract each other. Attraction or repulsion between objects can also be seen on another form of pull or push. सो स्टूडेंट, हमने पढ़े थे कि लाइक जो मैग्नेट है वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और अनलाइक क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. ओके, सो अट्रैक्शन और रिपल्सन जो है ऑब्जेक्ट का, ये कौन से फॉर्म में रहेगा, पुल और पुश. डू यू हैव ब्रिंग द मैग्नेट इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम. A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. The force exerted by the magnet is an example of a non-contact force. तो ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते, फिर भी वो क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते, तो इसे ही क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट ऑन पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो जो मैग्नेट है वो आयरन के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट करता है उसे क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. अभी है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक फोर्स. So here is activity. Take a plastic straw and cut it into a nearly 2 equal pieces. Suspend one of the piece from the edge of a table with the help of piece of a thread. Now hold the other piece of a straw in your hand and rub it free and with a sheet of paper. तो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, एक टेबल लेना है, वहाँ पे देखो ऐसे आपको यहाँ पे हैंग करना है. सो ये जो है स्ट्रॉ, ये दो स्ट्रॉ देखो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. रब देखो, अ स्ट्रॉ रब्ड विथ पेपर अट्रैक्ट अनदर स्ट्रॉ बट रिपल इफ इट हैज़ ऑल्सो बीन रब्ड विथ अ शीट ऑफ पेपर. सो ये स्टूडेंट, ये एक्टिविटी है, क्या होगा, नेक्स्ट rub the free end of the suspend piece of the straw with the sheet of paper. Again bring up the piece of straw that was rubbed earlier with paper near the free end of the suspend straw. What do you observe now? तो क्या होगा, a straw is said to have a acquired electrostatic charge after it has been rubbed with the sheet of paper. जब हम straw को sheet of paper के साथ में अगर rub करेंगे, such a straw example of is charged body. The force exerted by the charged body on another charged और अनचार्ज बॉडी इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक फोर्स. इसे ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक फोर्स. कि एक बॉडी में क्या होता है, चार्ज बॉडी जो है एक्सर्ट करती है फोर्स अनदर चार्ज बॉडी पे या अनचार्ज बॉडी पे, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दिस फोर्स कम्स इनटू अ प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट. The electrostatic force therefore is another example of non-contact force. You will learn more about electric चार्जेस इन चैप्टर 15. तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक फोर्स के बारे में चैप्टर 15 में डिस्कस करेंगे. देन ग्रेविटेशनल फोर्स. यू नो दैट कॉइन और पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड. आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इजी है. अगर हम कोई भी चीज़ अगर ऊपर फेंकते तो वो नीचे आती है, इसका मतलब वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से. अगर हम कॉइन और पेन अगर हमारे हाथ से गिरती तो कहाँ पे आती है, नीचे आती है. ओके, लीव्स एंड फ्रूट ऑल्सो फॉल टू द ग्राउंड व्हेन दे गेट डीअटैच फ्रॉम द प्लांट. जब वो प्लांट में पक जाते हैं, डीअटैच टूट जाते हैं, तो वो भी फ्रूट्स कहाँ पे आके नीचे गिरते हैं, नीचे में आके. हैव यू एवर वंडर व्हाई इट इज़ सो. तो आपने कभी सोचे हो कि ये क्यों ऐसा होता है. व्हेन द कॉइन इज हेल्ड ऑन योर हैंड it is at rest. As soon as it is released, it being to move downward. It is clear that the state of motion of the coin undergoes a change. Can this happen without a force acting on it? Which is this force? तो ये कौन सा फोर्स की वजह से होता है. So objects or things fall toward the earth because it pulls them. This force is called the force of gravity or just gravity. तो जो भी चीज़ अगर नीचे गिरती है तो उसे कौन अट्रैक्ट करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपनी तरफ नीचे अट्रैक्ट करती है, तो इसे क्या कहते हैं, ग्रेविटी. दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स एंड द
The force of gravity acts on all objects, and the force gravity acts on all of us all the time without our being aware of it. Water being to flow towards the ground as soon as open a tap. Water in river flows downward due to द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सो स्टूडेंट ये सब जो है वाटर फ्लो होता है या हम लोग हमारे ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होते रहता है बिना हमें अवेयर करे हुए. ग्रेविटी इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन. In fact, every object in the universe, whether small or large, exert a force on every other object. This force is known as the gravitational force. तो इसे ही क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमारे छोटे बड़े सब ऑब्जेक्ट पे क्या होती है, अप्लाई होती है. ओके स्टूडेंट, then next topic is that pressure. So student, this topic we will continue in the next video. Okay, so till then